This is seventh part of the video on indifference curve analysis chapter. In the first part of the video you will find origin of IC analysis, definition of IC, indifference curve and indifference schedule. In second part of the video you will find marginal rate of substitution, indifference map and assumptions of indifference curve analysis. Third part deals with properties of IC. In fourth part of the video you will find price line or budget line equation, shift in budget line and slope of budget line. In fifth part of the video you will find consumers equilibrium, price effect, income effect, angel curve and nature of goods. In sixth part of the video you will find substitution effect and price effect as a combination of substitution effect and income effect in case of normal goods, inferior goods and given goods. This is the seventh part. In this video we will discuss derivation of demand curve with the help of indifference curve analysis. In IC analysis, demand curve is derived from PCC. PCC means price consumption curve. On the basis of price consumption curve, demand curve is derived. जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है. In this diagram, this is PCC. Initial ये budget line है BL. When price falls, जैसे ही price कम हुई, budget line BL डैश हो गई, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया S टू पॉइंट T. तो ये प्राइस चेंज होने से हुआ, तो इसलिए ये है प्राइस इफेक्ट. PCC shows the effect of change in price and demand curve also shows the effect of change in price on demand. इसलिए हम PCC से बनाते हैं डिमांड कर्व इन IC एनालिसिस, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है. ये है PCC, तो इस PCC से ये डिमांड कर्व ड्रॉ की हुई है. तो इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. This is the upper panel of the diagram and this is the lower panel of the diagram. तो जो ऊपर वाला पैनल है इसमें हम बनाएंगे PCC. तो वन साइड वन कमोडिटी, अदर साइड अदर कमोडिटी. एंड जो लोअर पैनल है इसमें हम बनाएंगे डिमांड कर्व. वन साइड कमोडिटी, यही एक्स कमोडिटी. और डिमांड कर्व अगर बनानी हो तो एक साइड हम जो कमोडिटी लगाते हैं दूसरी साइड उसी कमोडिटी की प्राइस हमें लगानी होगी, तभी ये बनेगी डिमांड कर्व. तो दूसरी साइड हम लगा रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स. जब हम कोई भी दो डायग्राम जोड़ के बनाते हैं, जैसे ये ऊपर नीचे हम जोड़ के बना रहे हैं,
तो ये तभी जुड़ेंगी अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेम होगी। Now suppose initially we have some price of X, some price of Y and money income of the consumer. कुछ ना कुछ मनी इनकम है, कुछ ना कुछ PX है, कुछ ना कुछ PY है। और जो PX है, सपोज PX है ये P1, X की जो प्राइस है, X की प्राइस सपोज है P1, ऐसे ही कुछ ना कुछ Y की प्राइस है, ऐसे ही कुछ ना कुछ कंज्यूमर की इनकम है, वो हम नहीं दिखा रहे। X की प्राइस जो है वो सपोज है P1। तो इन तीनों के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम PX and PY, suppose initial budget line is BL. This is the initial budget line. It means when price of X is P1, budget line is BL. जब X की प्राइस P1 है तो बजट लाइन है BL। And suppose this is IC1 and this is the equilibrium, suppose point S, and consumer is consuming X1 units of X। तो इसी को अगर हम नीचे ले आए X1, it means when price of X is P1, its demand is X1। तो ये हमारे पास आ गया सपोज पॉइंट S डैश। Now other things remaining same, suppose M is same, PY is same, suppose price of X falls, बाकी दोनों सेम हैं। सपोज जो X की प्राइस है वो कम हो गई, X की प्राइस सपोज P1 से कम होकर P0 हो गई। And you know, when price of X falls, consumer can purchase more units of X and budget line shifts anti-clockwise. Suppose this is the new budget line BL dash. It means when price of X is P0, तो budget line जो है वो है BL dash। एंड यहां पर कोई और इंडिफरेंस कर्व है, सपोज IC2 and this is the equilibrium point, suppose this is T point, and now consumer is consuming X2 units of X। अगर हम इसको नीचे ले आए
It means when price of X is P0, its demand is X2. This is T dash point. तो अगर हम ऊपर वाले पैनल में एस एंड टी को ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास बन गई पीसीसी. दिस इज द पीसीसी. और अगर हम यहां पर एस डैश एंड टी डैश को ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास बन गई डिमांड कर्व, dx, डिमांड फॉर x. एंड यू नो, ये जो डिमांड कर्व है, दिस इज लाइक यूजुअल डिमांड कर्व. ये आम डिमांड कर्व की तरह है, which shows that when price of X falls, its demand rises. Inverse relation between law of between demand and price. तो लॉ ऑफ डिमांड को जो शो कर रही है, तो आम डिमांड कर्व की तरह ये बन गई. तो इंडिफरेंस कर्व में जो डिमांड कर्व है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीसीसी, दैट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व. Next is comparison between utility analysis and indifference curve analysis. अभी तक हमने 2 चैप्टर स्टडी करे हैं कंज्यूमर डिमांड के, यूटिलिटी थ्योरी एंड इंडिफरेंस कर्व थ्योरी. इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द सिमिलरिटीज़. Consumer is rational. Both approaches assume that consumer is rational. तो एक तो ये सिमिलरिटी है कि दोनों ही अप्रोचेस, यूटिलिटी चैप्टर एंड इंडिफरेंस कर्व चैप्टर, ये मानते हैं कि कंज्यूमर अपनी इनकम को वेस्ट नहीं करना चाहता. कंज्यूमर अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है. तो दोनों ही ये मानते हैं कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है. Second similarity is subjective. Both approaches assume that utility varies from person to person, and every person has his own preferences. तो हर एक पर्सन के अपने अपने टेस्ट हैं, अपनी अपनी उसकी लाइकिंग्स हैं, अपनी अपनी उनकी प्रेफरेंसेस है. किसी को कोई कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, किसी को कोई कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, किसी को किसी कमोडिटी से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, किसी व्यक्ति को कम मिलती है. तो सबका अपना अपना सिस्टम है, दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव. थर्ड सिमिलरिटी इज टेंडेंसी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन. यूटिलिटी एनालिसिस assumes diminishing marginal utility rule and IC analysis assume law of diminishing marginal rate of substitution. तो दोनों के ही डिमिनिशिंग वाले रूल्स हैं. यूटिलिटी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और इंडिफरेंस कर्व में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है. कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सम इकोनॉमिस्ट्स assume that in both analysis condition of equilibrium is same. तो कुछ लोग मानते हैं कि इन दोनों चैप्टर्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी सेम है. तो जिन्होंने भी ये कहा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेम है, वो इन्होंने कैसे प्रूव किया, देखो.
We know in utility analysis condition of consumer equilibrium is this. यूटिलिटी चैप्टर में ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, प्रोपोर्शनैलिटी रूल है जो mu x अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई, ये होना चाहिए. ये यूटिलिटी चैप्टर में इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y should be equal to px upon py. That is, slope of IC should be equal to slope of the budget line. This is the condition of equilibrium in IC chapter. अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स ये y को हम यहाँ ले आएँ, px को ऊपर ले जाएं, तो ये बन गया mu x अपॉन mu y, और px ऊपर चला गया, ये बन गया px अपॉन पी वाई. तो यहाँ पर ये इक्वल हो गया पी एक्स अपॉन पी वाई के. इंडिफरेंस कर्व में भी ये इक्वल है पी एक्स अपॉन पी वाई के, इसलिए हम एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं, क्योंकि ये पी एक्स वाई सेम है. तो एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू दिस. तो ऐसे लोगों ने बता दिया कि दोनों की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो सेम है, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व चैप्टर का एम आर एस एक्स वाई है, ये यूटिलिटी चैप्टर की एम यू अपॉन एम यू वाई है. बट इसमें हिक्स ने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी की है. अब यहाँ पर क्या है, जिन्होंने भी ये प्रूव किया कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम यू है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम यू है, इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम आर एस है. तो ऐसे करके उन्होंने प्रूव किया. बट हिक्स के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं होता. अगर एम यू एक्स राइज भी कर जाए, एम यू वाई राइज भी कर जाए, फिर भी ये कम हो सकता है. जैसे एम यू एक्स सपोज 10 हो, एम यू वाई हो 2, तो ये बन जाएगा 5. अगर एम यू एक्स राइज कर जाए 20 हो जाए, और ये भी राइज कर जाए सपोज 10 हो जाए, तो एम आर एक्स वाई तो कम हो गया. देखो 5 से 2. तो जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं उन्होंने भी कहा है कि हिक्स के चैप्टर में ये प्रॉब्लम है, इंडिफरेंस कर्व में ये प्रॉब्लम है कि यूटिलिटी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, कि यूटिलिटी चैप्टर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम यू की वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम आर एस है. बट हिक्स ने यहाँ प्रूव किया कि नहीं, अगर एम यू बढ़ भी जाए, जैसे 10 से 20 हो गया और ये 2 से 10 हो गया, तो भी एम आर एस कम हो सकता है. इसलिए हिक्स के अकॉर्डिंग जो इंडिफरेंस कर्व चैप्टर है वो यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है. बट सिमिलरिटी देने वालों ने ऐसे प्रूव करके बोला कि दोनों चैप्टर सेम हैं. दिस वाज द सिमिलरिटी पॉइंट, नॉट डिससिमिलरिटीज. डिससिमिलरिटीज मीन्स दोनों चैप्टर्स में क्या डिफरेंस है. अब यूटिलिटी चैप्टर पहले आया, इंडिफरेंस कर्व चैप्टर बाद में आया. इट मीन्स इंडिफरेंस कर्व में ज़रूर ही कुछ बेटर फंक्शंस होंगे, बेटर कंडीशन होंगी. जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है, पहले आया, जो बाद में मोबाइल फ़ोन आएगा तो उसमें बेटर फंक्शंस होते हैं, ज़्यादा अच्छी ऐप्स होती हैं, ज़्यादा अच्छी वर्किंग होती है उसकी. तो ऐसे ही अगर कोई पहले चैप्टर आया, उसके कंपैरेटिव अगर कोई बाद में चैप्टर आएगा तो ज़रूर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगी. और जो जो पहले चैप्टर के कंपैरेटिव दूसरे चैप्टर में इम्प्रूवमेंट्स होंगी, वही उस चैप्टर को डिफरेंट बनाएगा पहले चैप्टर से. और जो जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको हम बोल रहे हैं सुपीरियरिटी. सुपीरियरिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. जिन जिन पॉइंट्स को लेके इंडिफरेंस कर्व चैप्टर सुपीरियर है यूटिलिटी चैप्टर से, इट मीन्स वो चीज़ें यूटिलिटी चैप्टर में नहीं हैं, इंडिफरेंस कर्व चैप्टर में हैं. तभी इंडिफरेंस कर्व चैप्टर जो है वो यूटिलिटी चैप्टर से डिफरेंट है. तो कैसे कैसे डिफरेंट है,
फर्स्ट इज द आईसी एनालिसिस इज मोर रियलिस्टिक, ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि इसमें ऑर्डिनल मेजरमेंट की है यूटिलिटी की, इसलिए ज़्यादा रियलिस्टिक है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें, यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसको हम मेज़र नहीं कर सकते कार्डिनल नंबर में 1 2 3 में। जैसे सपोज़ आप दूध पिया 1 गिलास, तो आप अगर कहो कि मेरा 15 पेट भर गया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो आपका पहले से ज़्यादा पेट भर गया या कम भर गया, ये मीनिंगफुल है। इसलिए जो आईसी एनालिसिस है उसमें ऑर्डिनल मेजरमेंट किया है यूटिलिटी का, इसलिए ये आईसी चैप्टर ज़्यादा रियलिस्टिक है। इट मीन्स आईसी चैप्टर इट हैज़ मोर रियलिस्टिक फाउंडेशन, तो इस बिकॉज देर इज़ नो नीड टू मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स, क्योंकि इस चैप्टर में यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मोर रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिस्टिक अजम्पशंस, क्योंकि इसकी जो अजम्पशंस हैं वो रियल हैं, ऑलमोस्ट ऐसे होता है, वही चीज़ें अज्यूम की हैं, जैसे कंसिस्टेंसी है, ट्रांजिटिविटी है, तो ऐसी चीज़ें आमतौर पे होती हैं। तो रियल सिचुएशंस के ऊपर ये बेस्ड है, इसलिए ज़्यादा बढ़िया तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन लेस असम्पशंस, तो इसकी असम्पशंस भी लेस हैं। इवन लेस असम्पशन के बाद भी इस चैप्टर ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, कंज्यूमर बिहेवियर को ज़्यादा अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस किया है, इवन ऑन द बेसिस ऑफ द लेस असम्पशंस। इट इज़ फ्री फ्रॉम द अनरियलिस्टिक असम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट कमोडिटी, तो हर एक कमोडिटी इंडिपेंडेंट है। यूटिलिटी चैप्टर ये मानता है कि जैसे मैंने बताया था उस चैप्टर में कि समोसे की अपनी यूटिलिटी है, चने की अपनी यूटिलिटी है, बट अगर हम दोनों को इकट्ठा करें फिर उसकी यूटिलिटी अलग है, जो यूटिलिटी चैप्टर में नहीं दिखाया बट इसमें दिखाया है। तभी इसने एक्सप्लेन किया सब्स्टिट्यूट गुड्स को एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को, क्योंकि अगर कमोडिटीज़ अलग अलग हों फिर सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए यूटिलिटी चैप्टर में सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसा कुछ नहीं आया। इट इज़ फ्री फ्रॉम द अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यूटिलिटी चैप्टर की ये अजम्पशन है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। इस चैप्टर में ऐसी कोई अजम्पशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इट डिवाइड्स प्राइस अफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट एंड इनकम अफेक्ट, जैसे हमने स्टडी किया। तो इस चैप्टर में हमने प्राइस अफेक्ट को डिवीज़न की है, उसकी दिखाया है डिटेल में कि टोटल जो प्राइस अफेक्ट है उसमें कितना, जैसे मतलब ये टोटल अगर हम बनाएं, ये टोटल प्राइस अफेक्ट है, तो इसमें कितना इनकम अफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट है, कितना इनकम अफेक्ट है, प्राइस अफेक्ट के ये जो 2 पार्ट्स हैं ये इसने एक्सप्लेन किए हैं। तो यूटिलिटी चैप्टर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया। 8th पॉइंट है इट एक्सप्लेन्स गिफन्स पैराडॉक्स, तो बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम अफेक्ट, प्राइस अफेक्ट को दोनों हिस्सों में बांटने की वजह से इस चैप्टर ने, इंडिफरेंस कर्व चैप्टर ने गिफन गुड्स की एक्सप्लेनेशन की है। जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिफन गुड्स तीनों तरह के केस में एक्सप्लेन किया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ये कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट superiority is it is helpful in the estimation of welfare. We know that higher IC represents higher level of satisfaction. अब जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, अगर उन पॉलिसीज़ के बेस पे, गवर्नमेंट के डिसीजंस के बेस पे, या मतलब कंट्री की अगर हम डेवलपमेंट लेवल देखनी हो, अगर कंज्यूमर्स हायर आईसी पर पहुंच गए, इट मीन्स उनकी जो सेटिस्फेक्शन है, उनका जो वेलफेयर है वो बढ़ गया। This was about the comparison between 2 chapters, utility analysis and IC analysis.
नेक्स्ट हेडिंग इज यूज और सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस, एक ही बात है, ऑफ आईसी एनालिसिस। इसके क्या यूज हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। वैसे अगर हम मास्टर लेवल पे स्टडी करें तो ये इनके जो इम्पोर्टेंस है, एक एक इम्पोर्टेंस के लिए पूरा एक चैप्टर है। जैसे पहले कंजम्पशन की इम्पोर्टेंस के लिए चैप्टर है, कंजम्पशन की इम्पोर्टेंस के लिए जो चैप्टर है वो तो यही वाला चैप्टर है जो हमने अब ये 7 पार्ट्स में वीडियो बना के स्टडी किया। तो कंज्यूमर कैन अचीव इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। आईसी एनालिसिस के साथ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बन जाता है, कंज्यूमर को पता लग जाता है। ऐसे ही प्रोडक्शन में भी ये यूजफुल है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम भी आईसी के थ्रू बन जाता है। तो वहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व को बोलते हैं आइसोक्वांट्स, जिसको कहते हैं सिमिलर क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी। आइसो मीन्स सेम, क्वांट्स क्वांटिटी से बना है। तो सेम क्वांटिटी वाली कर्व, जिसको हम प्रोडक्शन चैप्टर में स्टडी करेंगे, यूज़ करेंगे इसको। और बजट लाइन की जगह हम यूज़ करते हैं वर्ड आइसो कॉस्ट लाइन। ये प्रोडक्शन चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है। तो बजट लाइन की जगह पर आ जाएगी यहाँ पर अगर मैं आपको लिख के बताऊं, बजट लाइन की जगह पर आ जाएगी आइसो कॉस्ट लाइन, और इंडिफरेंस कर्व की जगह पर आ जाएगी आइसो क्वांट। तो इसके बेस पे हम स्टडी करेंगे प्रोडक्शन चैप्टर में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो एक तो कंजम्पशन में इसकी इम्पोर्टेंस है, प्रोडक्शन में इसकी इम्पोर्टेंस है, एक्सचेंज में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर हम एक्सचेंज में देखें, एजवर्थ ने ये एक डायग्राम दी है जिसको कहते हैं एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। तो उसमें उन्होंने समझाया है कि दो जो कंज्यूमर हैं उनके पास, दोनों के पास ए है, वाई बी, एक्स है, वाई है, दो कमोडिटीज़ हैं। ए एंड बी दो कंज्यूमर हैं, दोनों के पास एक्स है, वाई है। तो एक कंज्यूमर एक्स लेके दूसरे को वाई उससे ले ना ले, एक्सचेंज करे ना करे, ये इंडिफरेंस कर्व हमें बताती है। इसको हमने, अगर हम मास्टर लेवल की स्टडी करें, उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है एक्सचेंज की डायग्राम बना के। अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर इसकी डायग्राम ड्रॉ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं बनाया। तो वहाँ पे इसकी डिटेल है। तो एजवर्थ के अकॉर्डिंग MR/XY एक कंज्यूमर का MR/XY दूसरे कंज्यूमर के अगर बराबर हो फिर तो एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बराबर ना हो, जैसे यहाँ पर ये बराबर नहीं है, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, फिर एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। और एक्सचेंज करने पर या तो एक कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, ए को या बी को, या दोनों को बेनिफिट होगा, लॉस किसी को नहीं होगा। अगर आप सोचो, एक को बेनिफिट हो, दूसरे को लॉस ना हो, या दोनों को बेनिफिट हो, तो नेचुरली ओवरऑल इकॉनमी में जो डेवलपमेंट है वो होगी, ग्रोथ होगी, वेलफेयर होगा लोगों का, लोगों की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। तो एक्सचेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो इस चैप्टर में हमें पता चलता है। तो एक्सचेंज तभी करनी चाहिए अगर एक कंज्यूमर का MR/XY दूसरे कंज्यूमर के MR/XY के बराबर ना हो। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्पफुल है। विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर कैन डिसाइड यूनिट्स ऑफ टू गुड्स ही शुड कंज्यूम। जैसे हम जो भी इक्विलिब्रियम बनाते हैं, जैसे इस डायग्राम में हमने ये इक्विलिब्रियम बनाया, सपोज S पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बनाया, तो कंज्यूमर को पता चल गया कि वो इतनी क्वांटिटी OX1 X की कंज्यूम करे और इतनी क्वांटिटी OY1 Y की कंज्यूम करे। तो कितनी क्वांटिटी वो X की कंज्यूम करे, कितनी क्वांटिटी Y की कंज्यूम करे, ऐसे कंज्यूमर को पता चल जाता है।
ऐसे ही प्रोडक्शन करने के लिए हम कितनी लेबर लगाएं, कितनी कैपिटल लगाएं, ये प्रोड्यूसर को पता चल जाता है। तो ऐसे ही जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पार्ट है, जो कि इस चैप्टर के थ्रू भी होता है। तो ये 4 मेन एक्टिविटीज़ हैं जो फर्स्ट 4 इसकी इम्पोर्टेंस हैं: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बहुत ही मेजर एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक्स की 4: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड चारों में जो इंडिफरेंस कर्व चैप्टर है वो हेल्पफुल है। देन फॉर पब्लिक फाइनेंस के लिए भी हेल्पफुल है। पब्लिक फाइनेंस एक अलग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, जिसमें गवर्नमेंट के जो काम हैं रेवेन्यू से रिलेटेड एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, उनकी स्टडी की जाती है। तो इंडिफरेंस कर्व चैप्टर वहाँ भी बताता है कि जो कैश सब्सिडी है वो देनी चाहिए या काइंड सब्सिडी देनी चाहिए। इसको भी हम पीजी लेवल पे स्टडी करते हैं, मास्टर लेवल पे, कि कैश सब्सिडी अगर हम दे लोगों को वो ज़्यादा बेटर है, उनसे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। एंड गवर्नमेंट के लिए ये सस्ती भी होती है कंपैरेटिव टू काइंड सब्सिडी। ऐसे ही जो टैक्स के डिसीजन हैं कि डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा बेनिफिशियल है, इनडायरेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये आईसी एनालिसिस इन सब की स्टडी करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम पब्लिक फाइनेंस में ये चैप्टर को डिस्कस करें तो वहाँ पर ये सारी डिटेल है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक इम्पॉर्टेंस के लिए हम पूरा चैप्टर स्टडी कर सकते हैं, बट यहाँ पर पूरा चैप्टर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बट मास्टर लेवल पे आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग है, तो ऐसे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनको स्टडी करते हो। देन कंज्यूमर सरप्लस, आईसी मेजर्स कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस को भी इंडिफरेंस का मेजर करता है। कंज्यूमर सरप्लस, ये इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। कंज्यूमर सरप्लस होता है कि कोई भी कंज्यूमर कितने रुपए खर्च करने के लिए तैयार है किसी कमोडिटी के ऊपर, और असल में वो कितने रुपए स्पेंड करता है। जैसे सपोज करो आप मार्केट गए कोई बुक लेने के लिए, आप घर से 500 रुपीज़ ले गए कि 500 रुपीज़ की बुक आ जाएगी। इट मीन्स यू आर विलिंग टू स्पेंड ₹500 ऑन बुक। तो जब आप मार्केट में गए तो मार्केट में सपोज 400 की बुक आ गई जो आपने लेनी थी। ये वो अमाउंट है जो आपने असल में पे किया। तो 100 रुपये आपके पास बच गए। जो 100 रुपये आपके पास बच गए, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस द प्राइस कंज्यूमर एक्चुअली पेज, दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलती है, कितनी कैलकुलेशन होती है, जैसे मैथमेटिकली हमने आराम से कर लिया, तो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम कंज्यूमर सरप्लस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। This is the complete explanation of demand because it divides price effect into substitution effect and income effect, and it also explains Giffen's paradox। अब क्योंकि इस चैप्टर ने प्राइस इफेक्ट का एग्जैक्ट बताया कि कितना प्राइस कम होने से कितनी डिमांड बढ़ी, तो उसमें कितना हिस्सा इनकम इफेक्ट का है, कितना हिस्सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का है। ऐसे ही जो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं, जैसे गिफन गुड्स में हैं, तो वो भी इसने एक्सप्लेन किए हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि डिमांड की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आईसी चैप्टर ने दी है। अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस के चेंज होने पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने देखा कि प्राइस के कम होने से कंज्यूमर एस पॉइंट से टी पॉइंट पे चला गया, IC1 से IC2 पे चला गया, तो क्या वो हायर IC पे गया, लोअर IC पे गया, तो प्राइस चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ा कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पे,
वो हम डिस्कस करते हैं। तो प्राइस चेंज होने से कंज्यूमर के वेलफेयर में इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, तो वो भी स्टडी किया जाता है इंडिफरेंस कर्व चैप्टर में। 9th पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ राशनिंग। तो राशनिंग जो होती है, जैसे राशन कार्ड बनते हैं इंडिया में, जैसे जो PDS इसको कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके थ्रू जैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलती हैं, नेसेसिटीज़ मिलती हैं, जैसे वीट मिलती है, केरोसिन ऑयल मिलता है, शुगर मिलती है, पल्सेस मिलती हैं। तो उन चीज़ों से लोगों का वेलफेयर बढ़ता है नहीं बढ़ता, तो IC के थ्रू हम मेज़र करते हैं। अगर IC के थ्रू वो हायर IC पे लोग जा रहे हैं, इट मीन्स पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है। Similarly, the effect of government policy on economic welfare we can check if with the policy individuals shift to higher IC, वो पॉलिसी ज़्यादा बेटर है जिस पॉलिसी से लोग हायर IC पर चले जाएं, बिकॉज वी नो हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। This was about the importance of this chapter, importance of IC analysis. The last heading of this chapter is criticism of IC analysis. तो इस चैप्टर में कुछ कमियां भी हैं। जैसे फर्स्ट है अनरियलिस्टिक असम्पशंस। इसकी बहुत सारी असम्पशन अनरियलिस्टिक हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नॉलेज, लोग कंज्यूमर को पूरी नॉलेज है, तो ये मानना अनरियलिस्टिक है। Another assumption of convexity is also unreal. इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होगी ये ज़रूरी नहीं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमने खुद ही देखा जैसे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, उन केस में ये नहीं थी कन्वेक्स टू ओरिजिन। अनरियलिस्टिक असम्पशन ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी। तो कंज्यूमर अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाएगा। रियल लाइफ में इतना ज़रूरी नहीं होता कि कंज्यूमर जो है वो इतना रैशनल हो कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले ले अपने एक्सपेंडिचर से। हो सकता है बट ज़रूरी नहीं। क्रिटिसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस। तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक इकोनॉमिस्ट हैं, W.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, criticized indifference curve theory in 1950 in his article A Note on the Theory of Consumers' Behavior appeared in Oxford Economic Papers। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि कोई भी कंज्यूमर दो कॉम्बिनेशंस में इनडिफरेंट हो, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कॉम्बिनेशन डिफरेंट हैं और आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिले, ऐसे नहीं हो सकता। आर्मस्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग इसका कहना है। फिफ्थ पॉइंट इज द लाफेबल कॉम्बिनेशंस। ये बड़ा ही अजीब कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। जैसे सपोज हम एक साइड पर ले लें पेयर ऑफ शूज़, एक साइड पर ले लें पेयर ऑफ शर्ट्स, तो ए कॉम्बिनेशन जो है ये कॉमन कॉम्बिनेशन है। आम लोगों के पास ये हो सकता है कि उनके पास 3 पेयर ऑफ शूज़ हों और 8 पेयर्स ऑफ शर्ट्स हों, 8 शर्ट्स हों। 8 आपके पास शर्ट्स हैं और 3 आपके पास जूते की जोड़ी है, ये हो सकता है। बट अगर ये कॉम्बिनेशन शो करता है कि यू हैव 9 पेयर्स ऑफ शूज़ एंड 2 शर्ट्स, तो ये थोड़ा ऑड कॉम्बिनेशन है, ऐसा लोगों के पास नहीं होता। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में कभी भी सेम सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए ये क्रिटिसिज्म करने वालों ने कहा है कि कभी कभी अगर हम यहाँ पे गुड्स क्या लगा रहे हैं उस बेस पे अगर ये कॉम्बिनेशन बनाएं तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसको देखकर हंसी आती है, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, रियल नहीं लगता। इट इग्नोर्स कॉम्बिनेशंस इन्वॉल्विंग रिस्क। तो बिजनेस में क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे कॉम्बिनेशन भी बना के चलते हैं जो रिस्क लेते हैं। लेबर लगाई, कैपिटल लगाई, ये आउटपुट किया, वो आउटपुट किया, इतने एक्स पैदा किया, इतना वाई पैदा किया। तो इट मीन्स उस टाइम वो रैशनल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी,
हो सकता है ना हुई हो। तो ये रिस्क वाले कॉम्बिनेशन, अनसर्टनिटी वाले कॉम्बिनेशन, ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए। मास्टर लेवल पे अगर हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना चाहें इन केस ऑफ रिस्क, इन केस ऑफ अनसर्टनिटी, इन केस ऑफ रिटर्न, तो रिस्क रिटर्न की जो आईसी है उसकी शेप ही अलग है। वो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, देन आईसी हैज़ नेगेटिव स्लोप, कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये प्रॉपर्टीज़ उसमें फॉलो नहीं होती इन केस ऑफ रिस्क। तो रिस्क वाली चीज़ों को इसने इंडिफरेंस कर्व चैप्टर ने दिखाया तो है, बट इस चैप्टर में जैसे अगर हम देखें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग नहीं ड्रॉ होती। वो प्रैक्टिकली कैसे ड्रॉ होती हैं वो हम मास्टर लेवल के जो वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, दैट इज इट इज इंट्रोस्पेक्टिव। अकॉर्डिंग टू Paul Samuelson was an American economist and the first American to win the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1970. He was the doctoral student of Joseph Schumpeter. इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामिन योर ओन आइडियाज, फीलिंग्स एट्सेट्रा। तो अपने जो आप फील कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करना, उसको वॉच करना, उसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अंतर्ध्यान। अगर हम देखें तो सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग द प्रेफरेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इज एन इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हमें सेटिस्फेक्शन सेम देगा, कौन सा कॉम्बिनेशन डिफरेंट देगा सेटिस्फेक्शन, ये इंट्रोस्पेक्शन है, अंतर एनालिसिस है ये। तो इसको क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, नंबर्स में हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, कार्डिनल मेजरमेंट नहीं हो सकता। तो इसकी जगह सैमुअल्सन ने एक और तरीका दिया है। Samuelson is in favor of behaviorist ordinalist approach। तो ये जो सैमुअल्सन की अप्रोच है, जिसको हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, उसमें डिटेल में बताया है। सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग आप ये मत देखो कि ए कॉम्बिनेशन ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बी कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन दे रहा है, दोनों की सेटिस्फेक्शन सेम है या डिफरेंट है, दोनों में कंज्यूमर इनडिफरेंट है। आप ये मत देखो, आप सिर्फ उसी बात पे ध्यान दो जो कंज्यूमर ने कॉम्बिनेशन ले लिया, बस। तो जिसको हम कहते हैं बिहेवियरिस्ट, कि जो कंज्यूमर ने बिहेवियर किया, जो उसने एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन ले लिया। तो उस अप्रोच के बेस पे सैमुअल्सन ने अपनी थ्योरी दी है, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिवील्ड, जो कंज्यूमर ने रिवील की अपनी प्रेफरेंस, थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। तो थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस पे अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप ये देख सकते हो। 8th पॉइंट है इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स जिसको हम सिर्फ अज्यूम करते हैं, सोचते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू शम्पीटर, जोसेफ शम्पीटर, जिसके सैमुअल्सन स्टूडेंट हैं, Joseph Schumpeter was an Austrian political economist. He was the PhD supervisor of popular economists Paul Samuelson and James Tobin and was teacher of Paul M. Sweezy. Sweezy के भी ये टीचर हैं। Schumpeter के अकॉर्डिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज नॉट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ। तो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर ये बेस्ड नहीं है, rather it is based on the imaginary combinations। क्योंकि लोगों को पूछा जाता है कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन देगा, प्रैक्टिकली वो कॉम्बिनेशन अप्लाई करके नहीं देखा कि सेम सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं। इसलिए सैमुअल्सन ने जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है उसको यूज करने के लिए कहा है। दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। In properties of IC, it is observed that
डेरिवेशन ऑफ आईसी बिकम्स कम्प्लेक्स फॉर मोर देन 2 गुड्स। तो ये हमने चैप्टर में भी देखा था कि 2 गुड्स से ज़्यादा गुड्स के लिए इंडिफरेंस कर्व बनानी मुश्किल है बिकॉज ऑफ द 2 डिमेंशनल नेचर ऑफ द डायग्राम। एक्स वाई हम एक तरफ एक्स लगा देते हैं, एक तरफ वाई लगा देते हैं, तो तीसरी कमोडिटी लगाने के लिए स्पेस नहीं होता, इसलिए आईसी कम्प्लेक्स बन जाता है। दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, डेनिस रॉबर्टसन was an English economist who taught at Cambridge and London universities. There is nothing new in IC analysis as compared with the utility analysis. रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग जो कुछ यूटिलिटी चैप्टर में है वही कुछ इस चैप्टर में है, बट सिर्फ उसको नए तरीके से प्रेजेंट किया है। जैसे यूटिलिटी चैप्टर में कार्डिनल नंबर थे, यहाँ पे इन्होंने ले लिए ऑर्डिनल नंबर। यूटिलिटी में यूटिलिटी था, यहाँ पे था प्रेफरेंस। यूटिलिटी में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पर है डिमिनिशिंग एमआरएस। इसलिए बोथ अप्रोचेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन। Because of these difficulties, you can say this is impractical. According to Morris, IC analysis is based on substitute goods which are almost identical or homogeneous and is the feature of perfect competitive market. तो ये जो चैप्टर है, मॉरिस ने बड़ी अच्छी क्रिटिसिज्म की है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मानता है कि गुड्स जो हैं वो सब्सटीट्यूट होती हैं, तभी कंज्यूमर एक गुड को कम करके उसकी जगह दूसरी गुड ले लेते हैं। जैसे हमने एमआरएस में देखा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में देखा। तो सब्सटीट्यूशन तभी होती है जब गुड्स सिमिलर हो। तो सिमिलर गुड्स ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की फीचर है, जिसमें हम कहते हैं सेम गुड्स। परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर के ऊपर भी अलग से वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें उसकी फीचर्स हैं कि जो आउटपुट है, प्रोडक्ट है, वो सारी फर्म्स का, सारे सेलर्स का आइडेंटिकल है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्योंकि रियल मार्केट में हम नहीं देखते, रियल मार्केट में हम जो फाइंड करते हैं वो करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए जो आईसी चैप्टर है वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है बिकॉज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन रियल मार्केट। इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन डिमिनिशिंग एमआर विदाउट डिमिनिशिंग एमयू। जैसे हमने सिमिलैरिटी के लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, ये वाली कंडीशन बन गई थी इक्विलिब्रियम की। तो कुछ लोगों ने कहा कि एमयू एक्स कम होता है, एमयू वाई कम होता है, इसीलिए एमआरएस कम होता है। बट जैसे मैंने उस सिमिलैरिटी वाले पॉइंट में भी समझाया इसी वीडियो में कि हिक्स के अकॉर्डिंग डिमिनिशिंग रिटर्न एमआरएस जो है ये तो अप्लाई होगा, चाहे एमयू एक्स का डिमिनिशिंग का लॉ अप्लाई ना हो, क्योंकि उसमें जैसे हमने दिखाया भी अगर ये दोनों बढ़ भी जाएं तो भी एमआरएस कम हो जाएगा। So this is all about the indifference curve chapter. For the complete explanation of this chapter, you must watch all the 7 parts of the video. And if you want to study this chapter in more detail, then watch some other videos on IC analysis that are the master level. Thank you. Thanks for watching this video.